सिस्टम हैकिंग मेथोडोलॉजी। आज के इस सेशन में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फॉर हैकिंग ए सिस्टम देयर इज ए नीड टू फाइंड पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट इन द ओएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और रेलेवेंट सिस्टम। यानी किसी भी हैकिंग करने के लिए या किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए हमें एक्सप्लॉइट ढूंढना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The exploit can be found using various techniques and tools such as exploit DB and Metasploit. Some vulnerabilities scanning tools like OpenVAS, Nexpos, and Nessus are also used. Basic information gathering from footprinting, scanning, enumeration. Footprinting से हम IP ranges, namespace, employees, scanning से target assessments, identified systems, services, एनुमरेशन से इंट्रूसिव प्रॉबिंग यूजिंग लिस्ट और यूज़र लिस्ट और सिक्योरिटी फ्लॉस इनको पता कर सकते हैं। हैकिंग मेथोडोलॉजीज: रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, क्लियरिंग ट्रैक्स। अब ये पीपीटी मेरे भी पास में काफ़ी ज़्यादा कम क्लियरिटी में है, ऐसे नहीं कि मुझे भी दिख रही है, मुझे ये नहीं दिख रहा है तो इतना टेंशन मत लीजिए। ओके, फर्स्ट है स्कैनिंग रिकॉनेसेंस, सेकंड है स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, क्लियरिंग ट्रैक्स। हर हैकर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये 5 है एक्चुअली जो कि पिलर है साइबर सिक्योरिटी के, हैकिंग के। Gaining access, cracking password and do whatever you want to do, but gain access. Now, escalate privilege, exploit known vulnerabilities, execute applications like Trojan, spyware, backdoor, keyloggers, जिससे हम हमेशा अपने सामने वाले सिस्टम को हैक करके रख सके और जब चाहे उसको यूज़ कर सके। हिडन फाइल्स, रूट की डिस्टेग्नोग्राफी, covering tracks like clear logs and delete your all data from internet. Okay, gaining access. Gaining access is the phase where an attacker obtains control over the target, be it a network or a web application. Password attacks. Techniques used to recover passwords gain unauthorized access successfully because of easily guessable password. Types of password attacks: non-electric attacks, like no need no possess technical knowledge, just dumpster diving, shoot surfing or shoulder surfing. किसी के खाने के पीछे खड़े हो जाना और उसका पासवर्ड देख लेना, इसका मतलब वो है। एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स: क्रैकिंग बाय डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद अ विक्टिम। ओके, लाइक कॉल किया, आपने पासवर्ड पूछ लिया, हो गया, बात खत्म। ये ट्रोजन डाउनलोड कर दिया, स्पाईवेयर डाउनलोड कर दिया, की लॉगर डाउनलोड कर दिया। पैसिव ऑनलाइन अटैक्स लाइक स्निफिंग, उनके घर पे वाईफाई वायर शार्क लगा दो, बात खत्म। नाउ ऑफलाइन अटैक: कॉपीज टारगेट पासवर्ड फाइल्स एंड ट्राई टू क्रैक प्री कंप्यूटेड हैशेस। Active online attack: an attack on the authentication protocol where the attacker transmits data to the claimant credential services provider CSP, verify or relying party RP. Example of active attack include man in the middle, impersonate and session hijacking. Okay, कुछ भी नहीं है। एक्टिव अटैक सिंपल है, जिसमें एक अटैकर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ओके, खुद ही उसके कंप्यूटर सिस्टम्स के टेक्नोलॉजीज के साथ भी। डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, रूल बेस्ड अटैक्स, हैश इंजेक्शन अटैक, एक पासवर्ड हैश फाइल में और हैशेस में सेव होता है। पैसिव ऑनलाइन अटैक: पैसिव ऑनलाइन अटैक्स आर relatively scarce from a classification perspective but can be carried out with a relative easy or particular if the traffic is not encrypted. There are two types of passive attacks: eavesdropping, tapping. The attacker simply listening the messages exchanged by two entities. Packet sniffing: run packet sniffer tools on the local area LAN, capture data including sensitive information such as password, FTP login, etc. gaining unauthorized access. इसको हम अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। ओके, मैन इन द मिडल अटैक: ये होता कैसे? अटैकर इंट्रूडर or intrude into an existing connections and possible alters the communication between two members. In 2013, Edward Snowden leaked document he obtained while working as a consultant at the National Security Administration, NSA, NASA. NSA NASA नहीं होता है,
NSA ही है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। The document shows that the NSA pretend to be Google by intercepting all traffic with the ability to spoof SSL encryption certificate. Now original connection directly जा सकता था. Now new connection perpetrator. Okay, परपेट्रेटर क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है वो सिक्योरली लेकर जाता है ना। अब बात करते हैं ऑफलाइन अटैक्स। रेनबो टेबल और इस तरह के अटैक्स हम परफॉर्म कर सकते हैं जिनसे हमारे इनक्रिप्टेड डेटा भी डिक्रिप्ट हो जाते हैं। ओके, कंटेनिंग वर्ड लिस्ट लाइक डिक्शनरी फाइल जिसमें बहुत सारे वर्ड के मतलब होते हैं, एंड ब्रूट फोर्स लिस्ट देयर हैशेस वैल्यूज, कंपेयर द हैशेस, इजी टू रिकवर पासवर्ड। पासवर्ड सॉल्टिंग। अभी पासवर्ड सॉल्टिंग क्या होता है, हमारे पासवर्ड्स के बीच में कुछ न्यू कैरेक्टर्स ऐड हो जाना जो इजी टू अंडरस्टैंड ना हो किसी को। ऐसे कैरेक्टर्स ऐड होने के बाद में क्या होता है, हम पासवर्ड को अपने समझ नहीं पाएंगे। ओके, password sorting is the technique to protect password stored in the databases by adding a string of 32 or more characters and then hashing them. Sorting prevent hackers who breach an enterprise environment from reverse engineering password and stealing them from the databases. Privilege escalation. A privilege escalator or privilege escalation attack is a cyber attack to gain uh, illicit access of elevate right, permission, entitlement, or privileges beyond what is assigned for an identity, account, user, or machine. Horizontal privilege escalation occurs when an attacker gains access to the same permission level but under different users' identities. For example, when an attacker uses an employee's stolen credential, this is horizontal privilege escalation. The goal here isn't necessarily to gain root privilege. Okay? Privilege escalation. Vertical gaining high privilege, horizontal privilege gaining, okay, same level of privilege. So ज़्यादा कुछ नहीं है इसका मतलब, बस इतना है कि अपनी प्रिविलेजेस को बढ़ाना, एस्केलेट करना, प्रिविलेज एस्केलेशन में यही होता है। सो अभी हमें प्रैक्टिकल देखना था, हाँ, पासवर्ड को जो हम स्निफ करते हैं उस चीज़ के लिए। तो जस्ट वेट, मैं आपको शो करता हूँ ये कैसे पॉसिबल होता है प्रैक्टिकली। लॉन्च एनीवे, ओह सॉरी 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 सॉरी। ओके, हमें अपना टूल यूज़ करना है अभी, बट सबसे पहले मैं अपनी आईपी एड्रेस चेक करता हूँ कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपरली हुआ है या नहीं। तो इफ़ कॉन्फिग एंड सब कुछ बढ़िया है, वायर शार्क हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमारे। एंड अभी हमने वायर शार्क ऑन कर लिया है, तो हम इंटरसेप्शन ऑन करते हैं, यहाँ पर इसको परमिशन देंगे। फायरफॉक्स ब्राउज़र को ऑन करते हैं ताकि हमारे पैकेट्स शेयर हो सके और हमारा डेटा कैप्चर हो पाए। हम टेस्ट PHP को यूज़ करेंगे ताकि हमें कोई लीगल इश्यूज़ को फेस ना करना पड़े। साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं एक पासवर्ड और यूज़र नेम रखता हूँ। सो हम यहाँ पर पासवर्ड रखेंगे नाउ यू
आर हैक, ओके, हैक्ड, ये बढ़िया लग रहा है। एंड पासवर्ड में हम एक पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। सो पासवर्ड रखते हैं हैक्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अभी हम एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे लॉगिन के पैकेट्स भी हमें आ चुके हैं और यहाँ पे मुझे लॉगिन पैकेट भी मिल चुका है। सो बढ़िया है। अब हम जस्ट HTTP स्ट्रीम पे आएंगे। यहाँ पर हम अपने सारे के सारे पैकेट्स को देख सकते हैं क्योंकि ये इनक्रिप्टेड नहीं है। अगर से इनक्रिप्टेड होता तो हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जाता इसको डिक्रिप्ट करना। एंड अब हम पास टाइप करते हैं यहाँ पे एंड सर्च करते हैं, तो पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, ओके। रिसेंटली ऊपर गया पासवर्ड, यहाँ देख सकते हो। अभी आप यूज़र नेम है नाउ यू आर हैक्ड एंड पासवर्ड है हैक्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह आप किसी के भी इंस्टाग्राम यूज़र का पासवर्ड नहीं चुरा सकते हो एक्चुअली, क्योंकि इंस्टाग्राम इनक्रिप्टेड है। बट हाँ, अगर से आपके पास में पासवर्ड आ जाता है तो आप वायर शार्क लगा सकते हो एंड पैकेट्स को डिक्रिप्ट कर सकते हो थ्रू APIs एंड सम डिक्रिप्शन कीज, ओके। कर सकते हो, पॉसिबल है। मैं वो बता नहीं सकता वो चीज़ें, बट दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ये है कि वायर शार्क का यूज़ करके एयरपोर्ट पे भी आपको नज़र रखा जाता है, लॉ इन्फोर्समेंट आपको नज़र रखती है, फिर आपके चाहे पासवर्ड्स इनक्रिप्टेड क्यों ना हो। यूट्यूब पे में भी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक पर्सन ने फ्लाइट में जस्ट एक मैसेज पास किया था अपने फ्रेंड को कि वो तालिबानी सदस्य है और प्लेन उड़ाने वाले हैं। तुरंत कुछ आर्मी ऑफिसर्स एंड फाइटर जेट्स ने उसको पकड़ लिया था। सो ये रियल है कि हाँ, हम पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना पॉसिबल है। तो मैं होप करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।